गर फिरदौस बरुए ज़मीं است हमी است و हमी است و हमी است. Srinagar, where every weather wraps a different wonder, where palaces are made by fairies and of dreams, and places so spiritual that God resides everywhere, in a strand of hair, in color-changing strings, in the impression on rocks, and in soulful peace, where God's palette has painted petals in many hues, and trees bear the sweetest of fruits, where plates are filled with wholesome feasts, and clothes envelop you with the softest warmth one could feel. Oh, it is heaven indeed. Here gardens do afloat on lakes, and lakes freeze at their will. Here lie many wondrous sights and majestic creatures. Climb, glide, or soar, and feed your adventurous soul. Or witness the magic of cinematic tales come to life. Here nature gets the care she deserves, and her beauty even more preserves. Maybe it is true that matches are made in heaven, because true love blooms here eternally. Here, praises and cheers await your speech, and the priceless memories of paradise long for your home. There is a heaven on earth, and it's Srinagar indeed. Incredible India. Hi everyone. Do what you can with what you have where you are. Begin. Today is 2nd of June 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, when we are alone तो self doubt हम पर हावी हो जाता है. तो that is why हमें community में रहना चाहिए. जब हम like minded people के साथ रहते हैं तो हमारी strength multifold बढ़ जाती है. There is immense power when a group of people with similar interests gets together to work toward the same goals. Compounding effect of community is phenomenal. This truly works. Study full throttle. ये टेलीग्राम क्विज है. एवरीडे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. जॉइन. दिस इज वोकैबुलरी. फर्स्ट वर्ड है इनसुपरेबल. इसका मतलब होता है अजेय. इसका मतलब है ऑफ अ डिफिकल्टी और ऑब्स्टेकल इम्पॉसिबल टू ओवरकम. इम्पॉसिबल टू ओवरकम. अनक्वेंचेबल का मतलब होता है अतृप्त. नॉट एबल टू बी क्वेंच्ड. डिटर का मतलब होता है रोक रखना. दैट इज डिस्करेज फ्रॉम बीइंग समथिंग बाय इंस्टिलिंग डाउट्स और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज. अनअबेटेड. अनअबेटेड का मतलब है अक्षीण, विदाउट एनी रिडक्शन इन इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ. सोवेनियर होता है यादगार. A thing that is kept as a reminder of a person, place or event, that is keepsake or memento we can say. So ये vocab words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत जरूरी है. ये है CSAT. This is question number 1. Simple question है. Pointing to a man in a photograph, Asha said that his mother's only daughter is my mother. How is Asha related to that man? आपको बताना है. Is it nephew, sister, wife or niece? Second question है. E is the son of A. D is the son of B. E is married to C. C is B's daughter. How is D related to E? So this is question number 2. Now this is social media update. You have to identify this fort. ये कौन सा fort है?
इसका हिंट है कि दिस इज सिचुएटेड इन मिड हिमालयाज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ कुड रिवर. दिस फोर्ट वॉज बिल्ड बाय राजा सुचेत सिंह. दिस इज सेकेंड अपडेट है. दिस इज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय. ये कहां पर है? भोपाल में है. द म्यूजियम डिस्प्लेज ट्राइबल हैबिटेशंस. ट्राइबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम ऑल अराउंड इंडिया which depicts tribal life in the villages and were created by the tribes themselves using local raw material. So tribal life, tribal culture पे ये एक बहुत अच्छा लाइट थ्रो करता है. Who is the first Indian woman weightlifter to win an Olympic medal? Can you answer A, B, C, D? What is the right answer? Then did you know में है, ये है जेमी थांग. ये अरुणाचल प्रदेश में है. दिस इज ऑल्सो नोन एज पैंग छेन. तो दिस प्लेस इज इन जेमी थांग. अक्सर बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री सवाल पूछे जाते हैं. तेलंगाना का फाउंडेशन डे है. दिस इज तेलंगाना's फाउंडेशन डे. आप हैं देवी अहिल्याबाई. मालवा की कुशल शासक और योद्धा थीं, जिनके शासनकाल में साहित्य, संगीत, कला, उद्योग और संस्कृति का उत्थान हुआ. आज एक सोशल मीडिया अपडेट में मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ने एक अपडेट दिया है कि किस तरीके से हम ग्रीनर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं. यूपीएससी में कई बार ऐसे सवाल आए हैं प्रीलिम्स में. फॉर एग्जांपल, हम यूज कर रहे हैं रबराइज्ड बिटुमेन एंड बायो बिटुमेन. ये क्या कर रहे हैं हम? पेविंग रोड्स विद इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स. तो हॉट मिक्स होता है, जैसे कोलतार होता है, आपने रोड्स बनते हुए देखा है. ऐसे गर्म कोलतार होता है, उससे रोड्स बनाई जाती है और कई जगह अभी सीमेंट का भी यूज हो रहा है. दिस इज रबराइज्ड बिटुमेन एंड बायो बिटुमेन. फ्लाई ऐश और फॉस्फर जिप्सम भी हम ऐड करते हैं. इससे स्ट्रॉन्गर हाईवेज बनते हैं. प्लास्टिक एंड म्युनिसिपल गार्बेज हम ऐड कर रहे हैं. बैम्बू क्रैश बैरियर है. अक्सर पहाड़ी इलाकों में, घाट में आपने देखा है इस तरीके से बैरियर्स लगे होते हैं ताकि एक्सीडेंट हो तो व्हीकल स्किड नहीं हो, खाई में नहीं जाए. अब ये जो बैरियर्स बनेंगे ये बैम्बू के बनेंगे. प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन है. Efficiency and quality in infrastructure, mandated use of minimum 25% precast component होगा नेशनल हाईवेज में. और हम स्टील स्लैग को भी यूज करेंगे. सस्टेनेबल रोड्स बनेगी. और अमृत सरोवर सॉइल सिल्ट, empowering communities with water storage and road development. So the whole idea is इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बट ये जितना ज्यादा पॉसिबल हो उसको हमें ग्रीन रखना है. ओके, नाउ दिस इज आंसर राइटिंग. आज का जो पहला सवाल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज से हम GS4 एथिक्स और ऐसे स्टार्ट करेंगे मेंस बैच में. सो एवरी वन ऑफ यू दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये एक मस्ट क्वेश्चन है. इसको आप करना, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, एंड यू विल थैंक मी लेटर. आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत सारा पढ़ा है, बट उनको अभी भी जो सिलेबस होता है उसका एक एक कीवर्ड नहीं पता है. तो हमें सिलेबस का एवरी सिंगल कीवर्ड बहुत अच्छे से फैमिलियर होना चाहिए. सो राइट डाउन द सिलेबस ऑफ GS4. बहुत आसान सा है. GS4 का सिलेबस उठाइए, उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, उनको अपने हाथ से एक बार अच्छे से लिख के आप उसको एक पेज में लिख लीजिए A4 साइज में, और उसको अपने डेस्क में जहां पढ़ते हो उसके सामने उसको आप पेस्ट भी कर सकते हो. डू दिस एक्सरसाइज और उसको शेयर भी. एवरी वन ऑफ यू विल डू दिस. सो राइट डाउन द सिलेबस ऑफ GS4. एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का एक एक कीवर्ड आप लिख के यहाँ पे बताओ. सेकेंड क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द लिथियम रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. लिथियम इंडिया में भी मिला है अभी. लिथियम रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के ट्राई टू आइडेंटिफाई. एक अच्छा सा वर्ल्ड मैप भी बना सकते हैं. अभी हमने देखा ना, कम्युनिटी. स्टूडेंट को अक्सर ऐसा लगता है वो आइसोलेशन में पढ़ लेगा. स्टूडेंट को अक्सर, सबको लगता है, मुझे भी लगता था, एवरीवन ऐसा फील होता है कि हम आइसोलेशन में पढ़ लेंगे, हमारे पास सारी बुक्स हैं, सारे वीडियोस मिल गए, हम उसको बिंज वॉच कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और हो जाएगी सारी चीजें. ऐसा 9 आउट ऑफ 10 केस में नहीं होने वाला है. इसके लिए जरूरी होता है कि हम एक रेगुलरिटी लाएं, डिसिप्लिन लाएं और एक कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट हो, सो दैट वहां पे पीयर लर्निंग हमारी बहुत अच्छी हो. So that is why we have got a very good community, srajanindia.1. आप इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ अपने आंसर्स आप सबमिट करिए. आप देखिए बहुत अच्छे क्वालिटी आंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं. पार्टिसिपेट, इससे एक रेगुलरिटी आएगी, डिसिप्लिन आएगी. आई विल बी रिव्यूइंग ऑल ऑफ योर सबमिशंस. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, यूपीएससी की पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, बट जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो मुश्किल होते हैं. सो दैट इज वाई हमें उन सर्कमस्टेंसेस में कम्युनिटी की हेल्प से वहां पे वर्क करना जरूरी है. सो डू दिस एक्सरसाइज, दिस विल हेल्प यू अ लॉट.
सिमिलरली दिस इज मेंस कोर्स, 15 सितंबर हम टारगेट कर रहे हैं। ये जितना भी सिलेबस है GS 1 2 3 4 ऐसे, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। सारा मटेरियल, सारी किताबें, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन मार्केट। व्हाट इज द डिफिकल्ट थिंग? द डिफिकल्ट थिंग इज टू स्टडी रेगुलरली। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एवरी डे 9 PM पे, एवरी डे 9 PM पे लाइव क्लासेस होगी। देयर विल बी अवर ग्रुप, देयर विल बी अवर कम्युनिटी, पार्टिसिपेट इन इट। आपको बहुत अच्छे से अपनी जो एंटायर प्रिपरेशन है वो राइट ट्रैक पे जाते हुए नजर आएगी। और हम इसको बहुत टाइम बाउंड मैनर में भी कर रहे हैं। 15 सितंबर डेडलाइन है, हम अगस्त में ही ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। हमारा टारगेट ये होगा कि जो अभी जून चल रहा है, जून में वी विल कवर एसए एंड GS4, जुलाई में वी विल कवर GS2, GS1 एंड 2, और अगस्त में वी विल कवर GS3। सो बाय अगस्त आपका अराउंड 1250 मार्क्स ऑफ मेन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 1750 कवर हो जाएगा। दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, प्लस देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स जो एग्जाम अभी लिख रहे हैं 15 सितंबर को, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलेगा, सिंसियरिटी रहेगी। ओके, और 11th ऑफ जून से 2024 की साइकिल स्टार्ट होगी। 11th ऑफ जून से 2024 प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग 2024 की क्लास स्टार्ट होगी। ये प्रीलिम्स 1 होगा। इसके प्राइमरली 4 कंपोनेंट्स होंगे। कोर सब्जेक्ट्स पे हम ध्यान देंगे, करंट अफेयर्स में हम ध्यान देंगे, सीसेट पे हम ध्यान देंगे, हम राइटिंग और क्रिस्प प्रिसाइज नोट्स मेकिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, और हम MCQ प्रैक्टिस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये काइंड ऑफ लाइक पंचामृत होगा, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा फॉर दिस आपका 26 ऑफ मई 2024 एग्जाम प्रिपरेशन का। इसके डिटेल्स में अभी सैटरडे संडे कल परसों तक बताता हूँ। ओके, अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, मेक इट अ हैबिट। सो वी फॉलो द हिंदू न्यूज़पेपर, जून 2 फ्राइडे 2023। अब न्यूज़पेपर में ऑल टाइप ऑफ न्यूज होती है। सो हमें कभी भी साइडवेज नहीं जाना है, सिलेबस के विद इन रहना है। पॉलिटिकल चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको पॉलिटी पे ज्यादा ध्यान देना है, और हमें जो सिलेबस की मर्यादा है उसके अंदर रहकर ही हमें सारी चीजों पे डिस्कशन करना है। सो ये वीडियो डेली बेसिस पे होंगे, अराउंड 40 मिनट्स में इसको हम कवर करेंगे। 40 को आप 1.5x में देख सकते हो, तो अराउंड 30 मिनट्स आपको डेली टाइम निकालना है। एवरीडे मीन्स एवरीडे। इससे आपकी सारा जो करंट अफेयर्स है, ओरिएंटेशन है, पढ़ाई का जो रूटीन है, वो बहुत ऑन ट्रैक रहेगा। सो डोंट मिस दिस डेली वीडियोस। फर्स्ट इज इंडिया नेपाल इंक पैक्ट्स ऑन एनर्जी ट्रांसपोर्ट। तो इंडिया नेपाल बायलैटरल टाइज को फिर से रिवैम्प करने की बात है। एनर्जी और ट्रांसपोर्ट दो मेन पिलर है, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट। देन दिस इज अ रॉयल वेडिंग, और ये है स्पॉटलाइट। सी अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं द बिग बूमिंग बिजनेस ऑफ चाइल्ड ब्राइड ट्रैफिकिंग इन गुजरात। सी चाइल्ड मैरिज इज अ क्राइम, इट इज अ क्राइम। तो ऐसा नेटवर्क है यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारे राज्यों में स्क्यूड सेक्स रेशो भी है। कॉन्टिन्यूअल मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल एंड सो कॉल्ड जो कम्युनिटीज हैं, इससे क्या होता है, अपैथी आता है और डिनायल आता है। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और इसमें गवर्नमेंट को फुल थ्रॉटल, नॉट ओनली गवर्नमेंट बट सोसाइटी एज एन इंडिविजुअल, एवरीवन, दिस इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको चेक करें। देन दिस इज नेक्स्ट वन, मेट्रो प्लस। अब सी लुक एट दिस फोटोग्राफ, लुक एट दिस पिक्चर। ये कौन सा डांस फॉर्म है? इसको बोलते हैं कथकली। कथकली। अब इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो, इसमें किस तरीके से मास्क पहना है, किस तरीके के कलर है, ये ब्लैक कलर क्या डिनोट कर रहा है। चलो आंसर एवरीवन, ये कथकली है। कथकली पे एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए, यूट्यूब कमेंट्स में ही आप बता सकते हो इन सारे जो विजुअल एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं इनमें क्या सिग्निफिकेंस है, कैन यू आंसर। और ये 1 ऑफ 8 क्लासिकल डांस फॉर्म होता है कथकली। बाकी डांस फॉर्म्स कौन से हैं ये भी बताइए। सो देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट आर्ट ट्रेडिशंस। जो आर्ट है, कल्चर है, इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जैसे देखो यहाँ पे एक थीम चल रहा है, तो क्या यहाँ पे किसी ड्रामा पे बेस्ड सारे एक्ट्स होते हैं? फ्रॉम बैक स्टेज टू सेंटर स्टेज वी नीड एन इंडियन आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब आप इंटरव्यू में जाते हो, आपसे चेयरमैन ने पूछा कि आप किस तरीके से इंडिया के आर्ट एंड कल्चर को बेहतर तरीके से कंजर्व कर सकते हो। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपके पास एक आइडिया है, यू कैन गिव वन आइडिया। व्हाई कांट वी हैव इंडियन आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज? जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, ऐसे डेडिकेटेड टू आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। दिस इज अगेन अ गुड आइडिया। सो यहाँ पर इस बात को फ्लोट किया है। तो हमें आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ना है। अभी जो हाल का पैटर्न है,
आर्ट एंड कल्चर में स्टैटिक चीजें नहीं आती है, अब इट इज मोर एंड मोर अबाउट आर्ट एंड कल्चर इन न्यूज। सो उसलिए जो हम ये सोशल मीडिया अपडेट डेली देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फिल्टर्ड वे में अभी और एलैबोरेट करने का प्लान है। आई विल प्रोवाइड इट टू यू ऑन डेली बेसिस। ओके, सो दिस इज मेट्रो प्लस। अब हम आते हैं एडिटोरियल में। रसलिंग फॉर जस्टिस, स्पोर्ट्स पर्सन जो है हमारे, स्पोर्ट्स पर्सन देश की शान होते हैं। सो वी नीड टू हैव दिस कल्चर जहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन्स को ड्यू रिकॉग्निशन भी मिले, एट द सेम टाइम किसी भी टाइप की जो इरेगुलरिटीज हैं या फिर जो चार्जेस आए हैं उस पे एक करेक्ट और निष्पक्ष रूप से सारी चीजों को यहाँ पे हैंडल करना जरूरी है। तो रेसलिंग फेडरेशन नीड्स एन ओवरहॉल इन द वेक ऑफ द अलिगेशंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम, वैसे भी इंडिया में स्पोर्ट्स का हम देखें तो हमारा बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है when we go to say Olympics etc. So we need to develop this sports culture। और स्पोर्ट्स कल्चर में केवल खेलना एक चीज नहीं होती है, इससे एसोसिएटेड बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। ऑल टाइप ऑफ चैलेंजेस को दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एवरीवन कि हम इसको हैंडल करें और दूर करें। राइडिंग मोमेंटम, फिस्कल मॉनेटरी मेजर्स मस्ट रिमेन ग्रोथ सपोर्टिव इन कमिंग क्वार्टर्स। कल डेटा आया था एनएसओ का और इस प्रोविजनल एस्टिमेट ने बताया कि जीडीपी वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडियन जीडीपी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और हम एक ब्राइट स्पॉट है। दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। अभी आप वर्ल्ड इकोनॉमी देखो, न्यूजीलैंड देयर इज डिफिकल्टी, अभी प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया। जर्मनी रेसेशन, रशिया डिफिकल्टी, फ्रांस डिफिकल्टी, इवन जो यूनाइटेड किंगडम में डिफिकल्टी, रेसेशनरी टेंडेंसी। जो यूएसए है, यूएसए भी कई जगह फॉल्ट कर रहा है। सो द पॉइंट इज वर्ल्ड जो इकोनॉमिक आउटलुक है और स्पेशली कोविड-19 और दिस इन पर्टिकुलर यूक्रेन वॉर के बाद जैसा हुआ, इन पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने रिलेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्म किया इकोनॉमी में। राइडिंग मोमेंटम, फिस्कल मॉनेटरी मेजर्स मस्ट रिमेन ग्रोथ सपोर्टिव इन कमिंग क्वार्टर्स। सो एनएसओ का डेटा है, जीडीपी का डेटा आया है। अब नंबर्स पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, 6.1%, 7.2%, ठीक है। अम्ब्रेला यूनिटी सर्विसेज जो है, यूटिलिटी सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई है। ओमनीबस सर्विसेज हैं जैसे ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग। तो जो 8 कोर सेक्टर्स होते हैं मोर और लेस इंडिया का अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस है। कोविड का फियर था, हमने ओवरकम किया, ग्लोबल हेडविंड्स को हमने ओवरकम किया। पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स भी ओवरऑल हमारा 50 प्लस में ही रहा है, सो विच इज अ गुड थिंग। तो द पॉइंट इज कि जॉब इज स्टिल नॉट डन। जैसे अभी जो नेक्स्ट मेन आर्टिकल बोलता है, मैन्युफैक्चरिंग पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में काफी लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक तरीका है और इससे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी हम कर सकते हैं। प्राइवेट एक्सपेंडिचर अभी भी ज्यादा नहीं है, प्राइवेट को भी क्राउड इन करने की जरूरत है। मॉनसून थैंकफुली इस बार नॉर्मल होना चाहिए। इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव कॉम्पनसेट कर देगा अल नीनो को। लेट अस वेट एंड वॉच। अब ये जो आर्टिकल है इसमें लिखा है एट द रूट ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज। अगर इंडिया की बात करें तो 1991 एक चेंजिंग टाइम था, एक टिपिंग पॉइंट था 1991। इसमें आया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो प्राइवेट सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है उसने बहुत अच्छा किया, बट मैन्युफैक्चरिंग ने इतना जंप नहीं किया, इवन एग्रीकल्चर ने ज्यादा जंप नहीं किया। सो अभी भी हम ये कोशिश कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाएं। अब देखिए सर्विसेज सेक्टर, अगर हम एफडीआई की भी बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो सर्विस सेक्टर में कितना है 16, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में 13। ये सारे कीवर्ड्स हमें पता होना चाहिए, अभी मेंस में इनकी बहुत यूटिलिटी आएगी। हेडिंग, सब हेडिंग, कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, देन ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, होटल एंड टूरिज्म, ये सब क्या है एफडीआई है, सेक्टर वाइज एफडीआई है यहाँ पे। अब मैन्युफैक्चरिंग में रिलेटिवली हमने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो हम इसमें ज्यादा पुश करने की कोशिश करते हैं, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हो गया। ये सेक्टर्स हैं मेक इन इंडिया में प्रमोट हो रहे हैं, जैसे कि ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसको लुक आफ्टर कर रहा है। एरोस्पेस एंड डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेटिव, ऑटो कंपोनेंट्स, बिकॉज ऑटोमेटिव जो होता है ना, ये भी एक सेक्टर होता है जिसमें व्हीकल मैन्युफैक्चरर तो होता है, बट अलाइड बहुत सारे ऑटो पार्ट्स कंपोनेंट्स का भी एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का एक सेटअप करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्ग्रीगेट बन जाता है यहाँ पे, और एक जगह पे ये लोकलाइज्ड कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे पुणे में एक हो गया, चेन्नई में एक हो गया, लाइक दैट।
फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस है, बायोटेक है, कैपिटल गुड्स है, टेक्सटाइल एंड अपैरल है, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ESDM, लेदर एंड फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, शिपिंग, रेलवे, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब क्या कहलाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स देख रहा है, इसमें IT सर्विसेज जो हमारा स्ट्रेंथ भी रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT इनेबल्ड सर्विसेज, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल वैल्यू, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, अकाउंटिंग, फाइनेंस सर्विसेज, ऑडियो विजुअल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंट सर्विसेज। तो जहां भी सर्विसेज आ रहा है वो पूरा दिस काइंड ऑफ लाइक सर्विस सेक्टर है, और सर्विस सेक्टर में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ट्रेडिशनली अच्छा रहा है। चाइना का परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा अच्छा होता है। अब हम चाह रहे हैं कि चाइना से, जैसे वन पॉलिसी एक अभी आ रहा था, 1+ पॉलिसी, इसमें चाइना में बेस है बट एट द सेम टाइम दे वांट टू मेक अ बेस इन इंडिया एज वेल। सो मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में अट्रैक्ट करना है, और उससे आता है मेक इन इंडिया। तो ये FDI है, FDI नंबर्स आर गुड, बट द पॉइंट इज कि हमें इसको और बेहतर करने के लिए रिलैक्सेशन कंडीशंस में लानी पड़ेगी, ताकि जो वेंडर्स हैं, जैसे एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो अभी विंस्ट्रॉन भी न्यूज में था। तो द पॉइंट इज कि जो कंपोनेंट्स बना रहे हैं वेंडर्स हैं, उधर भी हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, फैसिलिटेशन दें और गारंटीज दें कि किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो रूल्स हैं, रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगा, रैंडम डिसीजंस नहीं होंगे, प्रॉपर वर्क एटमॉस्फेयर होगा। तो ये सब चीजें होगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अब आपका होमवर्क है, बताइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक डेटा रिपोर्ट रिलीज करता है, उसके सारे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के? आंसर। तो एट द रूट ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज में प्राइमरली यही बातें लिखा है कि हमारा अनइम्प्रेसिव रिकॉर्ड रहा है, प्राइस ऑफ फूड बहुत ज्यादा हो जाता है, लॉजिस्टिक्स की बात आती है तो इंडिया में किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करना मुश्किल होता है, वहां पे वो महंगा हो जाता है, तो हम फिर उसको इंपोर्ट करने लग जाते हैं बजाय इंडिया में उसका मैन्युफैक्चर करने के। चाइना से इंपोर्ट सस्ता पड़ता है। सो हमें ओवरऑल इकोसिस्टम को बेहतर करना है, और रूल्स, जो ट्रेडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रेशर ग्रुप्स हैं, एवरीबडी, सबको हमें एक पेज पे लाके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 2.0 की जरूरत है। सेंट्रल एशियन फॉरेन पॉलिसी मल्टी वेक्टरिज्म पेज ऑफ। अब यहाँ प्राइमरली चाइना का एंगल दिया हुआ है। पहले हम जानते हैं सेंट्रल एशिया क्या है। मैपिंग बहुत जरूरी होती है, आज से हम बहुत ज्यादा मैपिंग पे एम्फेसाइज करेंगे, वर्ल्ड मैप ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम देखेंगे। तो ये देखिए, ये सेंट्रल एशिया है, ये कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान सबसे ऊपर है, दिस इज कजाकिस्तान व्हेन सेंट्रल एशिया कंट्री की बात कर रहे हैं। तो ये नूर सुल्तान है, यहाँ पे लेक बालकाश है, दिस इज लेक बालकाश। कजाकिस्तान के जस्ट नीचे आता है किर्गिस्तान, बिश्केक, उज्बेकिस्तान, देन इधर आता है आपका कैस्पियन सी, दिस इज कैस्पियन सी, और दिस इज यूराल रिवर, ओके, यूराल माउंटेन एंड यूराल रिवर। तो ये कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। देन कम्स ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान और फर्दर साउथ में हो रहा है। वैसे हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज इनको ज्यादा मानते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ओके, दिस इज कैस्पियन सी, लेक बालकाश, और ये अराल सी, ये भी प्रीलिम्स का सवाल है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है अराल सी। ऑलराइट, अब यहाँ पर चाइना का डोमिनेंस हो रहा है, चाइना के क्लोजर टाइज हैं, ऑल्दो इंडिया भी ईरान के थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चाबार पोर्ट के थ्रू, देन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशियन कंट्रीज को अभी रिपब्लिक डे परेड में भी इनवाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट। व्हेन द स्काईज पुट अप अ ड्रामेटिक शो। तो समर है, अभी मॉनसून, प्री मॉनसून देखने को भी मिल गया है, मॉनसून सीजन आने वाला है। जून में मॉनसून केरला आ जाता है, फिर ग्रेजुअली अपवर्ड जर्नी वो प्रोसीड करता है। तो जून 4 में केरला में आ रहा है, तो इस बार अल नीनो का फिनोमिनन है, प्लस पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है, तो अल नीनो रेनफॉल कम करेगा, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल रेनफॉल ज्यादा करेगा। तो ये पॉजिटिव जो दोनों हैं एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देने चाहिए, नॉर्मल रेनफॉल होना चाहिए। देन दिस इज कंजम्पशन, मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज एक्सेट्रा। अब यहाँ पर है हु शुड ओन द वर्ल्ड लिथियम। तो देखो ये लिथियम होता है, ये लिथियम के स्टोन्स अभी रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी मिले थे। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लिथियम इज यूज्ड फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, और ई व्हीकल्स का जमाना है, तो इसके लिए बैटरीज बनाना बहुत जरूरी होगा, और लिथियम इसमें हमारा ट्रम्प कार्ड हो सकता है। सो न्यू पोटेंशियली सिग्निफिकेंट रिजर्व्स ऑफ लिथियम मिले, न्यूज आया इसका।
ये एलिमेंट बैटरीज बनाने के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक कार्स में, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जम्मू एंड कश्मीर में आया। द पॉइंट इज कि जैसे ये एलिमेंट्स आते हैं, जैसे ऐसे मिनरल्स मिलते हैं, हम उसको एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट? उड़ीसा में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बट लुक एट उड़ीसा, उड़ीसा में क्या इतना ग्रोथ हो रहा है? प्लस एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है? छत्तीसगढ़ में मिनरल्स है। सो जम्मू एंड कश्मीर में भी ये जैसे मिनरल मिला है, बट इसके एक्सट्रैक्शन में एनवायरमेंटल कॉस्ट को इग्नोर नहीं करना है। और जम्मू एंड कश्मीर में सेंसिटिविटी भी आती है व्हेन इट कम्स टू से सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एटसेट्रा। तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियाज लिथियम इंडस्ट्री? ये काफी बड़ा मार्केट है और यहाँ पर हमको जरूरत है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का भी प्रेजेंस और बढ़ेगा, एआई 5G नेटवर्क है, तो लिथियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल रहने वाला है। यहाँ पर जब एक्सट्रैक्शन होगा तो उसमें हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी फ्रेजाइल है जम्मू एंड कश्मीर की इकोलॉजी, हिल्स, माउंटेन्स, रेवेन्यू, वेस्टलैंड्स, ये पब्लिकली ओन्ड है। क्या कॉस्ट पे होगा, किस कॉस्ट पे होगा? देन यूरेनियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूरेनियम से हम फिजन करके न्यूक्लियर एनर्जी बनाते थे। तो क्या ये जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, तो यूरेनियम की कैटेगरी में रखना चाहिए, यूरेनियम की कैटेगरी में लिथियम को भी। तो लिथियम रिजर्व्स अगर हम देखें तो देखिए, इसका पहले हम एक मैप देखते हैं। तो ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन एंड रिजर्व 2020 में कैसा है? ये यूनाइटेड स्टेट्स है, चिली में काफी मिलता है लिथियम, पोर्तुगल में है, ब्राजील में है, अर्जेंटीना में है, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। तो कुछ कंट्रीज में रिजर्व्स तो हैं, बट एक्सट्रैक्शन अकॉर्डिंगली नहीं है। तो हम ये देखते हैं प्रोडक्शन कितना हो रहा है उस लिथियम रिजर्व से। तो अर्जेंटीना है, देखिए प्रोडक्शन इसका है 6200, बट रिजर्व्स यहाँ पे इतने हैं, रिसोर्सेज दिस। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बोल्विया, ब्राजील, कनाडा, चिली, चाइना, चेक, डीआर कॉन्गो, फिनलैंड, जर्मनी, घाना, इंडिया, कजाक, माली, मैक्सिको, नामीबिया, पेरू, पोर्तुगल, रशिया, सर्बिया, स्पेन, यूएस एंड जिम्बाब्वे, यहाँ सब जगह मिलता है मिनरल्स। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है ओपन योर एटलस और ये जितनी भी कंट्रीज हैं, डू इट राइट नाउ। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बोलिविया, ब्राजील, कनाडा, चिली, चाइना, चेक, डीआर कॉन्गो, फिनलैंड, जर्मनी, घाना, इंडिया, कजाक, माली, मैक्सिको, नामीबिया, पेरू, पोर्तुगल, रशिया, सर्बिया, स्पेन, यूएस एंड जिम्बाब्वे। इनको आइडेंटिफाई करिए। दिस इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज, जस्ट डू इट। यू विल सी द ब्यूटी इन डूइंग सच टाइप ऑफ स्मॉल एक्सरसाइजेस। हमें जितना ज्यादा इंटरैक्टिव बनना है, हमें जितना ज्यादा क्यूरियोसिटी लाना है अपने आप में, वो हमें उतना ही फायदा पहुंचाएगा। सो बी ऑलवेज बी अ लर्नर, ऑलवेज बी अ लर्नर। मैं आपको एक और ट्रैप बताता हूँ, एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो मैंने काफी स्टूडेंट्स में अभी नोटिस किया है। एक बार क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है किसी भी स्टूडेंट का और वो काफी चीजें देख लेता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि उसने सारा सिलेबस देख लिया, कुछ एमसीक्यूज भी लगा लिए। सपोज 88 कट ऑफ जा रहा था तो उसके 80 नंबर भी आ गए थे। तो द पॉइंट इज, अब उसमें ऐसा एक सेंस आ जाता है कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। अब वो जब सेकेंड अटेम्प्ट देने जाता है तो वो वापस से सारी बेसिक ड्रिल्स को नहीं करता है। उसमें एक सेंस आ जाता है कि नाउ आई नो ऑल द थिंग्स, मैं केवल 8 नंबर ही तो पीछे हूं, तो मैं केवल इस 8 नंबर की कोशिश करूंगा, वापस सारी ड्रिल नहीं करूंगा। इसका खामियाजा क्या होता है? हर साल नया साल होता है, हो सकता है आपके 88 में 8 की जगह अभी और पीछे हो जाओ। दिस हैपन्स विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो नेवर एवर जो आपका बेसिक था, जिस तरीके से आपने स्टूडेंट मोड में जो थे आप, उसको लीव नहीं करना है। ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, ऑलवेज हैव दिस क्यूरियोसिटी, ऑलवेज हैव दिस रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन। वरना पता है क्या होगा, अटेम्प्ट्स बढ़ते जाएंगे, बस आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते जाएंगे। दिस हैपन्स विद सो मेनी स्टूडेंट्स। द पॉइंट इज, इस ट्रैप में नहीं फंसना है। ओके, तो जस्ट डू दिस एक्सरसाइज। आपको पता है ये सारी चीजें, एटलस खोलो, देख के बताओ कहां पर है ये चीजें। वाई शुड ओन द वर्ड्स, हु शुड ओन द वर्ड्स लिथियम? ओके, तो अगेन इसमें ये बात है कि हमें इसका प्राइवेट पार्टनरशिप भी होना चाहिए। नेशनल स्ट्रैटेजिकली ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे लेटिन अमेरिका की लिथियम पॉलिसी क्या है, इंडिया की पॉलिसी कैसे इवॉल्व करें, अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज पे है, नेसेंट स्टेज पे है। इस पे हम अननेसेसरी कमेंट्स नहीं करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट अब इसमें एक बहुत डिटेल्ड पॉलिसी अभी लाने वाली है। ओके, हाउ वाज ढाका रिएक्टेड टू द यूएस थ्रेट्स ऑन वीजास? एंड दिस इज नो योर इंग्लिश। इट मीन्स काइंड और स्टाइल, जॉनरे। ओके, तो मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी का है, मूवी है, पर्टिकुलर बुक है, एटसेट्रा। ओके, देन कॉम्पीट का मतलब है आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो, हैविंग अ सेंस ऑफ राइवलरी एंड ऑफ स्ट्राइविंग टू डू वंस बेस्ट एज वेल एज टू डू आउटडू अनदर। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पीट करना, राइवलरी वी कैन से। ओके,
देन इसके अलावा कॉन्टेस्ट भी होता है, कंपटीशन है, वहां पे एक काइंड ऑफ कंपटीशन। ये हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है, जैसे राज्यों में हमने हेल्दी कंपटीशन के लिए रैंकिंग का एक नीति आयोग ने कॉन्सेप्ट लाया था। ही wears his heart on his sleeve, इसका मतलब है इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज ऑल्सो यूज टू इन द सेंस ऑफ फॉल इन लव इजिली, लाफ इन वंस स्लीप। ओके, तो दिस इज अगेन इडियम्स, कहने का तरीका होता है स्लीव। आई लाफ्ड इन माई स्लीव व्हेन ही मेड दोज पॉम्पस रिमार्क्स। ओके, देन दिस इज फ्लेल। फ्लेल का मतलब है थ्रैश करना, गिव अ थ्रैशिंग टू बीट हार्ड, थ्रैश अबाउट। ओके, so this is know your English. India Nepal sign pacts on energy transport. कल इस पे मैं आंसर राइटिंग दूंगा इंडिया नेपाल रिलेशंस का। 10,000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी इंडिया इंपोर्ट करता है बिकॉज नेपाल में फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, हिमालय है और नीचे स्लोप है। ये फास्ट फ्लोइंग रिवर्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाना आसान होता है और यहाँ पे इंडिया भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहा है, अरुण प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, और इलेक्ट्रिसिटी हम इंपोर्ट करते हैं। कल्चरल लिंकेजेस होते हैं, ट्रेडिशनल हमारे बहुत अच्छे क्लोज रिलेशंस हैं नेपाल के साथ। फास्ट ट्रैक करना है रामायणा सर्किट को भी। तो प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंटर पार्ट नेपाल के यहाँ पे अभी एक मीटिंग हुआ। सो हम एनर्जी इंपोर्ट कराएंगे नेपाल से और एट द सेम टाइम बांग्लादेश के थ्रू भी इंडियन टेरिटरी में ये आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ नेपाल्स हाइड्रो पावर टू बांग्लादेश जाएगा थ्रू इंडियन टेरिटरी। तो ये 4 डे विजिट था। ट्रांजिट एग्रीमेंट प्राइमरली यहाँ पे साइन हुए और दूसरे साइन हुए एनर्जी एग्रीमेंट। हमारे इंडिया का NHPC एंड VUCL भी कोलैबोरेशन करता है दिस नेपाल काउंटर पार्ट्स के साथ और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने पर जॉइंट वर्क होता है। आई अप्रिशिएट इंडियाज विलिंगनेस टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रो पावर फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया बिकॉज नेपाल इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। इजियर एंड क्विकेस्ट पोर्ट नेपाल के पास कोलकाता होता है और उसके लिए इंडिया को एक्सेस करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये चेक पॉइंट्स एटसेट्रा है, लेट अस सी। तो नेपाल ट्रेडिशनली काफी क्लोज टाइज है हमारे, पीस फ्रेंडशिप भी है, बट इसमें चाइना कंट्री का बहुत ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिल गया है। तो लेट अस सी। देन दिस इज मिस्टर जयशंकर कॉल्स ऑन UNSC रिफॉर्म्स एट ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स समिट में रिफॉर्म्स की बात की। ब्रिक्स एक टाइम पे बहुत प्रॉमिसिंग देखा जा रहा था, अभी भी है, क्योंकि जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस एटसेट्रा, वहां पे एट टाइम्स वेस्टर्न बायस देखने को नजर आता है। और जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्रीज है इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखता है, जबकि दीज आर रैपिडली, इकोनॉमिक्स इनकी बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है। इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर है, वंदे भारत ट्रेन्स का अभी इसमें हर्डल है। इंडिया एंड चाइना होल्ड टॉक्स ऑन LAC इश्यूज इन न्यू दिल्ली। चाइना वॉर्न्स ऑफ काउंटर मेजर्स ऑन जर्नलिस्ट वीजाज। अभी चाइनीज जर्नलिस्ट के वीजाज हमने रिन्यू नहीं किए। कुकी ग्रुप है, आर्मी प्लेस सोशल मीडिया लीक्स ऑन दिस ऑफिसर्स। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है सोशल मीडिया में किस तरीके से बिहेव करना है। अभी काफी दिन से मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी एटसेट्रा फॉर्मुलेशन चल रहा है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं क्या हम उनको ओवरडू नहीं कर रहे हैं ग्लैमराइज करने का, सिविल सर्वेंट्स को एटसेट्रा को। सो देयर हैज टू बी अ कोड ऑफ कंडक्ट। सोशल मीडिया में किस तरीके से और कितनी प्रेजेंस होगी और ये क्या ओवर्ट ग्लोरिफिकेशन है, ये बैकफायर तो नहीं कर रहा है, ये उनको उनकी ड्यूटी करने पर हैम्पर तो नहीं कर रहा है। बिकॉज इन दी एंड इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय यू आर सपोज टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट। और इसमें फॉर द गवर्नमेंट इन द सेंस जिस तरीके से जो अभी ट्रेंड है सोशल मीडिया में, इसमें पॉलिसी इवोल्यूशन हो रहा है। लेट अस सी। सेडिशन लॉ कैन बी रिटेन बट विद सेफगार्ड्स, लॉ कमीशन ने बताया। कॉलोनियल लेगेसी है, जो सेडिशन है सेक्शन 124A होता है IPC का, सेक्शन 124A IPC का। तो अभी 22nd लॉ कमीशन ने भी बताया है सेडिशन लॉ कैन बी रिटेन, ये भी कंटिन्यू होगा बट इसमें प्रोविजंस होंगे सो दैट इसका मिसयूज नहीं हो, सेक्शन 124A। ओके, देन NCERT रैशनलाइजेशन है, हाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2027। सो दिस इज रियली गुड, एम्बिशियस भी। 2027 तक आधी इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज पे होगी। अब आपका होमवर्क है, आप इंडिया का एनर्जी प्रोफाइल बताइए कि हम किस रिसोर्स से कितनी एनर्जी मोरलेस ले रहे हैं। जैसे क्या कोल नंबर 1 है, क्या वाटर नंबर 2 है, यूरेनियम मतलब न्यूक्लियर फिजन किस रैंक पे आ रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी, क्या सोलर एनर्जी किस रैंक पे आ रहा है। ऐसे सेक्टर वाइज जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसका एक थोड़ा डेटा बताइए, रैंकिंग बताइए। रशियन कोर्ट फाइंस व्हाट्सएप, साउथ अफ्रीका लीगल ऑप्शन ICC वारंट अगेंस्ट पुतिन।
Maize मैन्युफैक्चरिंग PMI स्केल्स अ 31 मंथ हाई। तो प्रोडक्शन मैनेजर इंडेक्स जो है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, ये 3 मंथ हाई है। PMI ज्यादा एक्यूरेट डेटा होता है इकोनॉमिक हेल्थ का, बिकॉज व्हाट वी डू इन PMI में हम जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्विसेज एंड दिस बोथ, हम वहां पे देखते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को देखते हैं कि वो कितना रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, वो उनमें क्या सेंटिमेंट्स हैं इकोनॉमिक आउटलुक के। फॉर एग्जांपल, एक अगर सपोज एक स्ट्रीट स्टॉल है, सपोज एक समोसे की दुकान है, और उस समोसे की दुकान में एक्सपेक्टेशन उसको ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे बिजनेस बहुत अप जाने वाला है, तो वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना ज्यादा चालू कर देगा, ज्यादा वर्कर्स को हायर करेंगे, जैसे अक्सर फेस्टिवल सीजन्स में होता है, ज्यादा रॉ मटेरियल होगा। तो इन्होंने, यहाँ के परचेजिंग मैनेजर ने किस तरीके से डिसीजंस लिए हैं, इसका डेटा अगर हम एक लार्ज स्केल में कलेक्ट कर लें तो हम बता सकते हैं PMI सारे दिस मैनेजर्स वो परचेज ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपेंशन की सोच रहे हैं, एटसेट्रा। तो ये PMI अगर 50 के ऊपर होता है तो एक्सपेंशन, 50 के नीचे होता है तो कॉन्ट्रैक्शन। RBI should adopt neutral policies stance as inflation cools। ये काफी जस्ट भी होगा। डिजिटल लीडरशिप रोल्स राइजिंग इन इंडिया, इंस्टीट्यूशन कोल इंडिया, इतने क्रेडिट है। फ्रेंच ओपन चल रहा है अभी, और दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है पफ द मैजिक ड्रैगन। सी, ये जो ई सिगरेट्स होती है, सिगरेट इज सिगरेट, ई सिगरेट्स आर ऑफन पुश्ड एज अ सेफर ऑल्टरनेटिव टू स्मोकिंग इज बैड। तो ये जो वेप मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स हैं, स्मोकर्स हैं, द पॉइंट इज दिस इज ऑल्सो अडिक्टिव एंड इट इज नॉट एडवाइजेबल। ये डेट्रीमेंटल है फॉर द डेवलपिंग ब्रेन एज वेल। तो इससे काफी रियल रिस्क भी है। तो एनी टाइप ऑफ एडिक्शन इज नॉट राइट, टोबैको इज नॉट राइट। इसमें एडिक्शन, निकोटिन एटसेट्रा यूथ में देखने को मिल रहा है। सो द पॉइंट इज इसको भी डिस्करेज करना है। ई सिगरेट को ऐसा बताया गया कि ये हार्म रिडक्शन टेक्निक है, बट दिस इज नॉट ट्रू। सो द पॉइंट इज इसको एनकरेज नहीं करना है। देन दिस इज बिग शॉट, और यहाँ पर है वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म क्या हो रहा है, अक्सर आप देखना छोटे बच्चे भी हैं, वो बहुत ज्यादा डिजिटल एक्सपोजर है उनका, मोबाइल एंड अदर डिजिटल टेक्नोलॉजी, गैजेट्स एटसेट्रा में। इवन आफ्टर कोविड-19 स्टूडेंट्स में भी ये देखने को मिला है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर लाइक लेस सोशियबल, सोशल नहीं हो पा रहे, वो बहुत आइसोलेशन में जा रहे हैं। कई बार उनके बहुत सारे मेंटल इमोशनल बैरियर्स हो जाते हैं। आई सी दिस इन स्टूडेंट्स। लास्ट फ्यू वीक्स में प्रीलिम्स के पहले आई हैव टॉक टू सो मेनी स्टूडेंट्स। जो मेन सबसे बड़ा जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, पता है, स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे मेंटल इमोशनल बैरियर्स है, जो रियल तो कम है, अनरियल ज्यादा है। वो उनका अजम्पशन है, ऐसा हो गया है। द पॉइंट इज, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि एक्सपोजर कम है। हम अगर रेगुलर इन पर्सन होता है, या फिर बहुत ज्यादा हम जो सोशल मीडिया में भी देखते हैं, वो रियलिटी के बहुत परे होता है, रियलिटी ऐसी होती नहीं है। तो इससे क्या होता है, एट टाइम्स अननेसेसरी प्रेशर, पैनिक एंड ऑल टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। वर्चुअल ऑटिज्म, तो यहाँ पे ये है, जैसे फॉर अ चाइल्ड हु हैज बीन स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स एंड इज शोइंग साइंस ऑफ अनइवन डेवलपमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेज रिवर्सिंग द प्रोग्नोसिस। तो ये जो एक हेल्दी चाइल्डहुड होता है, इसमें फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी होती है, सोशल भी होती है। वी आर नॉट मशीन्स, ह्यूमन वैसे भी सोशल एनिमल बोला जाता है। तो ये बिहेवियरल डिफिकल्टी बहुत सारे देखने को मिल रही है, तो इसको डिजिटल ऑटिज्म का एक नाम दिया है। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। आंसर राइटिंग +2 फॉलो करते हैं, तो कल का जो आंसर क्वेश्चन था उसका डिस्कशन हम कल करेंगे, 3rd को करेंगे। फर्स्ट के आंसर का क्वेश्चंस का डिस्कशन हम 3rd को करेंगे। ये सेकंड के क्वेश्चंस हैं, तो इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, सो पार्टिसिपेट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।